اور اللہ کا بنایا ہوا کسی تخت کا محتاج نہیں، بے شک بے شک بے شک اللہ کا بنایا ہوا کسی کرسی کا محتاج نہیں۔ بے شک وہ ٹوٹے جلنگے پہ پھٹے بوریے پہ بھی بیٹھا ہو، ہاں 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 وہ پیوند زدہ لباس بھی پہنے ہو، بے شک بے شک وہ جوتیوں میں پیوند لگا کے اور بند لگا کر بھی پہن ہاں رہا ہاں ہو، ہاں 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 وہ جو کی روٹیاں پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہا ہو، تب بھی اس سے کوئی شاہی چھین نہیں سکتی، اس کی مالکی چھین نہیں سکتی۔ وہ میں سندھی قوم کی خوبیوں میں سے خوبی بتا رہا تھا کہ سید اگر آ جائے، اور سید سید ہے چاہے سنی اور شیعہ ہو، یہ سارے شیعہ بیٹھے ہوں گے اور سنی سید آ رہا ہو سائیں بچے، اور سارے سنی بیٹھے ہوں گے اور شیعہ سید آ رہا ہوگا سائیں بچے۔ یہ شیعہ سنی ان کا اپنا جھگڑا ہے، ہمارا تو سائیں ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ حسن ہے اس صوبے کے اندر۔ یہ کیا کرتے ہیں، اگر یہ سید کے تو ساتھ نہیں بیٹھتے، تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ بھولے ہوئے سبق بھی یاد آئے۔ ایک تو یہ سید کے برابر میں نہیں بیٹھتے، بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں، کم سے کم اس تہذیب والے تو گردن ہلاتے ہیں، یا ایک تو یہ برابر میں سید کے نہیں بیٹھتے، اور اگر سید کے بھی کے برابر بیٹھو تو یہ سرہانے نہیں بیٹھتے، اللہ اکبر، یہ پائتی بیٹھتے ہیں، یہ پائتی کی طرف بیٹھتے ہیں، سرہانے نہیں بیٹھتے۔ تو پھر بعض سید کیا کرتے ہیں، وہ جہاں سرہانہ اٹھا کے کہیں اور رکھ دیتے ہیں، بھائی جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں وہی سرہانہ ہے جی، یہ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، اہل بیت کہیں بیٹھے ہوں، وہی ان کی مالکی ہے، تم زندان میں بھی ڈال دو تو وہی ان کا تخت ہے، تم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ جہاں ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، بے شک وہ جہاں ہے کامل و اکمل ہے، بے شک وہ محتاج بھی نہیں ہے کسی کرسی کے، بے شک بے شک بے شک ان کی تو اپنی ہی جگہ ہے۔ دنیا کچھ کہے کچھ کرے، جو کمال اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ میرا یہ جو مطلب جو ابھی 3-4 جملے میں نے بولے، اس کو میں مستند کر رہا ہوں جناب زینب کے جملے سے، بی بی کے فرمان سے۔ بی بی نے آواز دے کر کہا، یا یزید، شام کا دربار، یا یزید کت قیدک وجہت جہدک، تو جتنی چالیں تیری، تو اپنی جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، وجہت جہدک، اور اپنی کوششیں جتنی کر سکتا ہے کر۔ فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں کی وجہ سے تو ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو شرف اللہ نے ہمیں قرآن اور نبوت کی صورت میں عطا کیا، تو نہیں چھین سکتا۔ اسیر بنانے سے کیا وہ شرف چھن گیا؟ ہمیں مارنے سے کیا وہ شرف ہم سے چلا گیا کہ ان کو مار دیا ہے تو اب نبوت ان کے گھر میں نہیں ہے، قرآن ان کے گھر میں نہیں اترا؟ تو جو کر سکتا ہے کر، مگر ہمارے شرف کو، ہمارے مقام کو اللہ نے جو ہمیں عزت اور مقام عطا کیا ہے وہ ہم سے نہیں چھین سکتا۔ یہ کہیں بھی ہوں، یہ حاکم ہیں دل و دماغ پر۔ بے شک بے شک 1400 سال گزرنے کے بعد ہر دن اہل بیت کے دروازے پر مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بے شک بے شک چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بے شک جیسے جیسے حقائق کھلتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے اہل بیت کے دروازے پر مجمع بڑھتا چلے جا بے رہا ہے، شک بے شک اور ہم میں سے ہر ایک شخص کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ میرے بھائی نے مجلس کا اہتمام کیا، آپ عزاداری کے لیے آئے، آپ مجلس کرتے ہیں، آپ مسجد بناتے ہیں، آپ مدرسہ بناتے ہیں، آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، کسی کا کسی پہ احسان نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا اپنے اوپر یہ مہربانی اور کرم ہے کہ وہ اپنا راستہ بھولا نہیں، وہ اپنے راستے سے اور اپنے مرکز سے آشنا ہے۔ عزادارو، آج 14 سفر ہے، لوگ بڑی تعداد میں کربلا پہنچ رہے ہیں امام حسین کا چہلم کرنے کے لیے۔ ہم میں سے بہت سو کو توفیق اگر نہیں ہے تو ہم بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، بار بار جائیں، اور یہ جو حالات کی خرابی اور یہ جو شرط و شرائط میں اضافے کا ایک پیغام ہے، خبریں ہیں، حقیقت ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں، سختی ہو رہی ہے، اللہ عزاداروں کو آسانی عطا فرمائے۔
मगर मैं अगर करबला नहीं गया तो मैं चाहूँ तो अपने शहर में ही करबला जा सकता हूँ। और वो कैसे? मेरे शहर में ही करबला हो सकती है। असल तो मेरे मौला से मेरा ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पे मैं आप सबसे अर्ज़ करूँगा, अपने आप से कहूँगा कि ना याम में कोई कोताही या कमज़ोरी न रह जाए। यही तो दिन है जो पुरसा देने के। मैंने मजालिस साल भर तौफीक होती है, अल्लाह का करम है कि मगर जितना गिरिया मैंने चिहलुम की मजलिसों में देखा इतना गिरिया साल भर की मजलिसों में नहीं होता। शायद उसका एक सबब यह है कि ये चिहलुम का दिन है ही वो जिस दिन ज़ैनब खुल के हो गया। जनाब ज़ैनब बीबी को कोई रोक नहीं रहा था, वरना जब भी अली की बेटी की आवाज बुलंद हुई तो रोने वालों को कहीं से ताजियाना आता था, कहीं से जनाब ज़ैनब की तौहीन होती थी, बीबी को रोने नहीं दिया जाता था। अभी आपने कल की तारीख में एक 4 साला बच्ची का मातम दिखाया। उस बच्ची का इस दुनिया से जाना कैसे हुआ? जनाब सकीना जो दुनिया से गई है ना, उसका एक सबब है घुटन। इस बच्ची का दम घुट गया। आपके घर में भी छोटी बच्चियां हैं। 4 साला बच्ची तो माँ की गोद से उतरती नहीं है। खास तौर पे बाप से तो 4 साला 3 साला बच्ची का इतना प्यार होता है कि वो जैसे ही बाप को देखती है लिपट जाती है। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। जनाब सकीना की कुछ कैफियत यही थी कि बाबा के साथ रोज सोती थी, बाबा के सीने पर लेटती थी, बाबा के बगैर जनाब सकीना का दिन नहीं गुजरता था। और इमाम हुसैन को भी अपनी बच्ची से इतना ही प्यार था। हज़रतारों, आपने बहुत सुना होगा ना, बेटियों को बाप से बड़ा प्यार होता है और बाप भी बेटियों से ज्यादा प्यार का इजहार करते हैं। मैंने करबला के मैदान में ये मंजर देखा है, जब जुलजना खबर शहादत लेकर आया ना, तो खेमों के दरमियान ढूंढ रहा था सकीना कहाँ। उसी खेमे पे जाकर रुका जिसमें जनाब सकीना थी, और ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो, और ऐसे आवाजें निकाल रहा था जैसे नौहे पड़ रहा हो। और जब बीबी सकीना ने बाबा के घोड़े की आहट महसूस की ना, तो दौड़ती हुई खेमे के दरवाजे पर आई। लेकिन जैसे ही निगाह उठाई तो क्या देखा? खाली घोड़ा है, बाबा नहीं है। तो इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, जुलजना ने गर्दन झुका दी। मेरी बीबी ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रखकर एक ही सवाल किया, या जवाद अभी हल सोते अभी अंकुतला अचाना, मैं मेरे बाबा के बावफा घोड़े, मुझे इतना बता, पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। आवाजें बुलंद हो गई मजलिस सुनदारों। अभी आप कुछ देर के बाद एक शबीह ताबूत की ज़ियारत करेंगे। हाँ हज़रदारों, हक है उसका ताबूत की शबी बना के उठाना जिसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। और काश हम करबला में होते। ये आपका गिरिया भी हसरत का गिरिया है ना। काश हम करबला में होते, यूं ज़हरा का लाल 3 दिन बेगोर कफन न रहता। मगर वो मंजर मैं कैसे बयान करूं कि जब शाम के जिंदान से रिहाई हुई, रिहाई हुई और सारी बीबियां महमिलों में बैठ गईं, तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा ज़ैनब, क्या सब बैठ चुकी? काफिला आगे बढ़ाया जाए। मेरी बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है। अज़ादारों, आगे इमाम सज्जाद थे, पीछे बीबियां थी। इमाम सज्जाद ने जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा? सारी बीबियों ने क्या देखा? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाया हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और एक मर्सिया पढ़ रही है, सकीना उठो हम मदीने वापस आए। और मेरी बच्ची को मैं वतन बहुत याद आता था। जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाभी चलिए काफिला तैयार है। फरमाने लगी ज़ैनब, मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए और ताबूत की ज़ियारत कर लीजिए कि एक मरतबा इमाम सज्जाद की आवाज आई, अम्मा चलिए हमें मदीने जाना है। हुक्म इमाम पाकर जनाब रबाब ने कब्र सकीना को छोड़ तो दिया,
मगर मुड़ मुड़ के खबर को देखती रही। महफिल में आके बैठ तो गई मगर पर्दा हटा के खबर को देखती रही। जनाब ज़ैनब ने जब देखा कि शाम की औरतें अलविदा अलविदा के नौहे बुलंद कर रही हैं, तो जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, ऐ शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? ऐ शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी औरतों ने कहा, बीवी हुक्म फरमाए। तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना, अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब की दफा जब आप शाम जाए ना तो कब्र से जाली से कब्र को जाली से कब्र को जरूर देखिएगा, जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नौहा पड़ती है, तुम्हारी माँ से वादा किया था। अजरुकुम अल्लाह। हो गई मजलिस अज़ादारों, मगर मेरा दिल कह रहा है एक लम्हा एक मंजिल और मेरे साथ आगे आ जाए। ये अभी 4 दिन के बाद मेरे मौला का काफिला शाम से करबला जाएगा और करबला से काफिला मदीना जाएगा। मैं करबला में भी एक अलम की ज़ियारत करवाऊं और एक अलम की ज़ियारत जरा मदीने में कर लीजिए। अजरुकुम अल्लाह। करबला में अलम की ज़ियारत करने वाला कौन है? हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी, सहाबी रसूल, नाबीना हो चुके थे, अपने गुलाम अतिया के साथ पहला ज़ायद क़ब्र हुसैन। सहाबी रसूल हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अपने गुलाम अतिया के साथ आए और अतिया से कहने लगे, अतिया मुझे क़ब्र हुसैन तक पहुंचा दे। और जैसे ही इमाम हुसैन की क़ब्र के करीब आए ना तो जमीन पे गिर पड़े और कहने लगे, मैं हुसैन की क़ब्र तक कैसे चल के जाऊंगा? घुटनियों के बल चलते हुए क़ब्र हुसैन तक पहुंचे और क़ब्र पर गिरकर इतना रोए कि उनकी आंखों के आंसुओं से क़ब्र हुसैन तर होने लगी। और अतिया से कहा, अतिया दूर जाके बैठ जा, मुझे कुछ देर बातें करनी है। अतिया कह रहा, मैं दूर बैठा देख रहा था, मुझे यकीन हो रहा था कि हुसैन मेरे मौला जाबिर से बातें कर रहे हैं। यानी कुछ बोलते थे और फिर जैसे सुन रहे हो, यानी क़ब्र हुसैन से गोया उन्हें आवाज आ रही हो। साहबी रसूल बड़ा नाम है हजरत जाबिर का, इमाम मोहम्मद बाक़िर तक उन्होंने ज़ियारत की है। और एक मर्तबा वो गुफ्तगू कर रहे हैं इमाम हुसैन से कि हड़बड़ाकर चौंक कर खड़े हुए और आवाजें देने लगे, अतिया जल्दी आओ, अतिया जल्दी आओ। कहता है, मैं भागता हुआ दौड़ता हुआ गया, कहने लगे मुझे सहारा देके दूर ले जाओ और जरा इस तरफ देखो तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? मेरा तो अकीदा यह है कि क़ब्र हुसैन से आवाज आई होगी, जाबिर मेरी बहन आ रही है, जाबिर जरा दूर चले जाओ, नबी ज़ादी आ रही है। जब ये तो आवाज दी मुझे दूर ले जाओ और देखो जरा इस तरफ से कोई आ रहा है। वो कहता है, मैं एक टीले पे खड़ा हो गया तो मैंने देखा काले आलम आ रहे हैं। मैंने जाबिर को आके बताया कि काले काले आलम आ रहे हैं, काफिला आ रहा है। तो जाबिर मुझे दूर ले जाओ, नबी ज़ादियां आ गई हैं। जाबिर अली और बतूल की बेटियां क़ब्र हुसैन पर आ गई। मातम हुसैन या हुसैन सितम बढ़ा के सता के